Hello friends, welcome to ProTalent, and this is Nitin Parmar bringing to you one of the very important session in our extra mile, that is article number 370 which has been scrapped. ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहला सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया गया है क्या? नो. So this is coming through a presidential order. And what is the order name? It says Constitution Application to Jammu and Kashmir Order 2019. ये रहा आपके सामने order. ये हमने आपके सामने डाल के रखा है so that you understand that this is the order which is coming from President on 5th of August 2019. I'm sure आप सबके पास ये WhatsApp पे आया भी होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप से घूमते घूमते आपके पास आया होगा. So this is the order coming from the President. So 370 has been scrapped through presidential order. ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में we are going to cover this 9 important points. That means we are going to understand some critical issues related to article number 370 and 35A and the new amendment to Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019. So हम क्या बात करेंगे? That what was the situation before 370 and now when we have revoked article number 370, what is the situation? Whether the accession of Jammu and Kashmir to India, is it final, complete and irreversible? Can Supreme Court reverse it? That's a big question. ठीक है. Another question we are going to answer today is whether according to article number 370 J&K is an autonomous state or not, and what was the scenario of 1954 presidential order. ठीक है. And what happened in article number 35A? When was it introduced? What is the current status of article number 35A? We are going to discuss about article number 370, whether article number 370 was used to kill article 370. That's a big question we are going to answer. Okay? And then we are going to discuss about this important thing, which is Jammu and Kashmir Reorganization Bill, and with that reorganization, which article is applicable? That is article number 239. So what would be the amendment expected in this article number 239? And another important part, the way government of India has scrapped this 370. There are a lot of states which are coming under article number 371. They are worried, and thereby the big question is how federalism and article number 31 are being questioned. This is what we are going to learn in this particular video. I hope this video will give you holistic perspective for your preparation. I hope that will be great for you. Let me start first to talk about this scrap part of article number 370. क्या हुआ? There is a power conferred by clause 3 of article 370 of Constitution of India to the President of India to seize all clauses of article number 370. Thereby special status of J&K is inoperative. This is not applicable. Now it is bringing in line with rest of the states or union territory. So it is not a special status now. Okay, so what is the change before and now? The change is this. Okay, special power to J&K is removed, so no special power. Dual citizen is removed, single citizenship. Dual citizenship थी पहले. People of Jammu Kashmir were getting citizenship of Jammu Kashmir as well as India. Now they are getting citizenship only of India. Separate flag of J&K, which will be no longer there now. Article 360, which was a financial emergency. It was not applicable earlier. Now it is applicable. There were no reservation earlier for the minorities. Now there is a reservation for Hindus and Sikhs. For the minorities, 16% citizens from the other states cannot purchase land or any property in J&K. Now they can purchase. RTI was not applicable. Okay. RTE, right to education, was not applicable. Now RTI and RTE
दोनों एप्लीकेबल हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली का वहां पे ड्यूरेशन होता था 6 years। नाउ जम्मू कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अब वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो उसका ड्यूरेशन है 5 years। ओके, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस बीइंग एडॉप्टेड। ओके, ठीक है। सो अब थोड़ा सा टेक्निकल चलते हैं और समझते हैं आर्टिकल 370 में क्या क्या लिखा है। वो पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाकर जो चेंजेस किए हैं मोदी गवर्नमेंट ने, है, उसको मुझे अगर एक्सप्लेन करना होगा तो मुझे ये बेस चाहिए होगा। फटाफट देखते हैं क्या दिया है। आर्टिकल नंबर 371C states that article number 1 and article number 370 of the constitution shall apply to JNK, which means ये दो ही आर्टिकल उनको अप्लाई होंगे। एंड द अदर प्रोविजन, अगर कोई दूसरे प्रोविजन JNK को अप्लाई करने होंगे तो दैट इज मॉडिफिकेशन एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर विल प्रोवाइड नंबर 1, बट इट विल बी एट द कॉन्करेंस ऑफ JNK गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के द्वारा जो भी एडिशनल चेंजेस करने कर सकते हैं, पर देयर हैज टू बी कॉन्करेंस ऑफ JNK गवर्नमेंट। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये कॉन्करेंस की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 373 बोलता है, इट सेज दैट प्रेसिडेंट कैन इश्यू अ नोटिफिकेशन मेकिंग द होल ऑफ 370 इनऑपरेटिव इफ such recommendation is made to the president by the constituent assembly of JNK। JNK की constituent assembly of Kashmir was dissolved in 1957। तो उसके बाद तो कोई constituent assembly है नहीं, तो अब प्रेसिडेंट साहब को कोई ऑर्डर देना है, ठीक है, तो वो ऑर्डर के लिए किसका कॉन्करेंस चाहिए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, उसका आंसर मैं देता हूं 2 मिनट में। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं कि कहानी क्या है। अब ये शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत हुआ जब इंडिया आजाद हुआ 1947। ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, एवरीवन नोज दैट। एंड देयर वर प्रिंसली स्टेट्स, उनके पास 3 ऑप्शंस थे, दैट इज ईदर टू रिमेन इंडिपेंडेंट और टू बी पार्ट ऑफ इंडिया और टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। Some territories have joined with Pakistan, some territories join with India। इंडिया में 3 स्टेट्स, ठीक है, एक हो गया जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर, वो नहीं आ पाए। ठीक है, हालांकि जूनागढ़ और हैदराबाद हमारे बॉर्डर, दैट मीन्स हमारी लैंड में कनेक्टेड थे, तो देयरफॉर इट वाज इजी फॉर अस टू टेक देम इन। द बॉर्डर स्टेट विच इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उन्होंने बोला वी आर गोइंग टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, एज सच यहाँ पे कोई भी कंट्री को या कोई भी प्रिंसली स्टेट को कोई भी 2 में से कोई एक देश में ज्वाइन करना है, उसके लिए उनको साइन करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसका कोई फॉर्मेट था नहीं, एक नॉर्मल कागज पे आप लिख के भेज सकते थे, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसा साइन करने की जरूरत थी जो जम्मू कश्मीर ने 1947 तक तो नहीं किया था। अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तब राजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर, ठीक है, he did not sign any instrument of accession, but in October, when the British withdrew from, you can say, the entire ruling, tribal people from, you can say, Pakistan area, they attacked to Kashmir with the help of Pakistani government. ठीक है, and thereby Raja Hari Singh came to India and asked Lord Mountbatten, the then Governor General of India, seeking help. He attached this instrument of accession to India कि आप इंडिया में आओगे तो ही तो इंडिया मदद कर पाएगा, and he signed it. According to that instrument, defense, external affair and communications, these 3 things were transferred to India's government and rest of the thing will be retained by the ruler. He signed this on 26th of October 1947. Okay, तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया, विल इट बी कंसिडर्ड एज फाइनल, कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल? लेट्स सी दैट। ठीक है, तो सवाल यही पैदा हुआ कि आर्टिकल नंबर 1 ये बोलता है that it is Jammu and Kashmir is a part of India. That means the accession of Jammu and Kashmir is final. Also, Jammu and Kashmir has its own constitution. उसमें आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक लिखा है that Jammu and Kashmir कोई sovereign है नहीं and it declares it is a state which is an integral part of India. ठीक है, and the objective of the state is to further define existing relationship of state with the Union of India. So ये
डॉक्यूमेंट से समझ में आता है दैट जो अभी एक्सेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ, दिस इज फाइनल, कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, अब दूसरा सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि इज JNK एन ऑटोनोमस स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 370। ठीक है, अब क्या हुआ, इन अक्टूबर 17 1949 में हमने आर्टिकल नंबर 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला एंड देयर बाय वी मॉडिफाइड आर्टिकल नंबर 1 एंड सेड दैट जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। Except Article number 1 and 370, ठीक है, the Jammu and Kashmir state is exempted from the constitution and thereby they also introduce few new things। ठीक है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 1954 में, उसके द्वारा आर्टिकल नंबर 35A ऐड किया गया। So that is only two articles which are applicable, article number 1 and article number 370, and central law is applicable only on the defense, ठीक है, external affair and communication, but for the other thing स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंस चाहिए। ठीक है, स्टेट हैज इट्स ओन पावर टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट विल हैव अ पावर ऑन जम्मू एंड कश्मीर बट इन अ रिस्ट्रिक्टिव सेंस। ठीक है, सो एक तरीके से देखा जाए तो JNK वाज सॉर्ट ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट, वो ऑटोनोमस सिचुएशन में था। ठीक है, अब देखते हैं कि 1954 का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। 1949 में तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया बोला पर ऑटोनोमस हो था। ठीक है ना, अब देखते हैं 54 का ऑर्डर क्या था। ठीक है भाई, दिस इज इश्यूड अंडर आर्टिकल नंबर 370 एंड देयर बाय वी कुड एक्सटेंड सर्टन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एंड सर्टन आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वहां तक पहुंच गया, इलेक्शन कमीशन वहां पे इलेक्शन कर पाएगा, CAG वहां पे ऑडिट कर पाएंगे, UPSC वहां पे एग्जाम्स कंडक्ट कर पाएंगे और वहां से लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। आर्टिकल 35A का पावर हमने उनके हाथ में दे दिया दैट जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली विल डिसाइड दैट हु विल बी द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उनके परमानेंट रेसिडेंट कौन होंगे और उनको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, ये हमने 35A में डाला। क्या डाला 35A में? तीन चीजें। ठीक है, पहला, empowering government of Jammu Kashmir to define class of people as a permanent resident of the state, so they will decide who are permanent member। ठीक है, and once it is decided the state will confer rights and privileges as per their own whims and fancy, so that is really possible। and number 3, it grants immunity, very important word, क्या देते हैं वो? immunity from any special rights and privileges। ठीक है, जो कोई भी ग्राउंड के ऊपर फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी अगर उसको निकालने की जरूरत पड़ी तो उसको निकाल नहीं सकते। तीन चीजें, परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है, उनको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे और उनके प्रिविलेजेस निकाल नहीं सकते, ये आर्टिकल 35A ने बोल दिया। ठीक है, सो ये हुआ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा हमने कुछ autonomy दी, but we considered that it is a part of Indian Constitution, और वहां से सवाल पैदा हुआ that whether 370 can be made permanent or not। ठीक है, so 370 नाम में ही लिखा है that it is part 21 temporary, transitional and special provisions according to article number 370, so thereby legal fraternity is divided into two parts on this। One who are in favor of article 370 revoking part, they said 370 was temporary क्योंकि लिखा ही था temporary है। ठीक है, and thereby this special privileges are transitional in nature and thereby it cannot confer full rights। At the same time, it is against article number 14 of right to equality। सबको इक्वालिटी मिल रही है और यह जम्मू कश्मीर वालों को अलग तरीके से स्पेशल अधिकार मिल रहे हैं। सो देयर बाय दिस इज नॉट ओके एंड इट कैन बी रिवोक्ड थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। दैट मीन्स द एक्सपर्ट्स हु बिलीव इन द फेवर ऑफ रिवोकिंग 370, व्हाइल द पीपल हु आर अगेंस्ट दिस रिवोक दे से दैट आर्टिकल 370 cannot be used to kill article 370 which is a bad idea। ठीक है, वो नहीं चल सकता। पार्लियामेंट कैन नॉट रिप्लेस स्टेट लेजिस्लेचर विद द गवर्नर। पार्लियामेंट ने किया क्या? पार्लियामेंट ने बहुत ही सिंपल सा काम किया। हमने क्या बात करी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अप्रूवल चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1957 में डिसॉल्व हो गई। ठीक है, अब क्या आना चाहिए उसकी जगह पे?
लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, क्यों नहीं है? वो डिसॉल्व हो गई है। और वहां पे क्या था? गवर्नर रूल। गवर्नर रूल की जगह पे अब क्या? प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल लगने से अभी जो भी पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो पावर किसके हाथ में? पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कौन? पार्लियामेंट। सो हु विल डिसाइड? पार्लियामेंट। So people are saying that state legislature के approve के बगैर parliament is replacing that body and taking decision. This is a bad idea. So is there any precedent in Supreme Court about this? Yes, Supreme Court का एक precedence है which is called संपत प्रकाश 1969 केस। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आर्टिकल नंबर 370 इज नॉट टेम्पररी। क्यों? क्योंकि उसको कभी हमने बंद नहीं किया है, और जब हमने उसको इट हैज नेवर सीज टू बी ऑपरेटिव, वी कांट रिमूव इट एंड इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ परमानेंट, एंड दे सेड इट इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा उन्होंने उस समय पे 1969 में बोला था। ठीक है, अब इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या? ठीक है, जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 370 इज यूज टू किल आर्टिकल नंबर 370। कैसे? 370 में क्लॉज नंबर 3 लिखता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो गई, यस और नो? सो देयर बाय दे अमेंडेड आर्टिकल नंबर 367 सेइंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह पे क्या आना चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है, एक तरीके से पार्लियामेंट ही उनके ऊपर रूल कर रही है। सो ये लेजिस्लेटिव पावर किसके हाथ में दे दिया? पार्लियामेंट के हाथ में दे दिया। सो देयर बाय दिस क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल। ये 370 के बारे में बातें हुई। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनदर amendment bill which is called Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019। ठीक है, ये तो 370 स्क्रैप करने का बात हो गया। कैसे स्क्रैप हुआ? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। स्टूडेंट्स के मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना दैट 370 स्क्रैप थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब जम्मू कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू यूनियन टेरिटरी थ्रू अनदर एक्ट which is called Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019। ठीक है, दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, लद्दाख बिकम्स अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। दैट मीन्स वहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, yes or no? So union territory of Ladakh, no direct elected. Jammu Kashmir is a union territory with direct legislature। ठीक है, so that means Jammu and Kashmir is at par with दिल्ली एंड पौंडीचेरी। सो भारत में टोटल 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। अभी उन 9 में से 3 के पास लेजिस्लेचर है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी। चलिए, ग्रेट। सो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का क्या हुआ? सो 4 राज्यसभा मेंबर्स विल बिकम एमपीज ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। 5 लोकसभा सीट्स वेंट टू जम्मू कश्मीर एंड 1 लोकसभा सीट वेंट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, और टोटल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विल हैव 107 सीट्स ऑफ देयर लेजिस्लेचर। उसमें से 24 सीट्स विल रिमेन वेकेंट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ पीओके। ठीक है, सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, जो ये यूनियन टेरिटरी बनी वो कौन से आर्टिकल में आएगी? नाउ दैट विल कम अंडर आर्टिकल नंबर 239। 239 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड by him with such designation as may be specified. So president will appoint administrator. So union territory will be governed by that. फिर 239 is specifically power provided for the Pondicherry. 239AA is for Delhi. अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के लिए कौन सा आता है। ध्यान रहे, दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों यूनियन टेरिटरी है, और वहां पे पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू दिल्ली। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ग्रेट। सो अब इन्होंने ये तो चेंज कर दिया यूनियन टेरिटरी। इसकी वजह से एक हल्ला क्रिएट हो गया कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, दैट मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें स्टेट भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बोलता है। उसको एक बड़ा सवाल पैदा हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूछे बगैर ये सब काम कर दिया। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 371 के द्वारा जो स्पेशल स्टेटस अलग अलग स्टेट का हुआ है वो सब स्टेट डरने लगे
और 371 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 370 एंड 371 वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज पास्ड, दैट इज जनवरी 26, 1950, ठीक है। 371 प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन टू 11 स्टेट्स इंक्लूडिंग 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। 371 में जो बड़े बड़े स्टेट्स है लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, है ना, उनको अपने इंट्रा स्टेट में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक स्पेशल स्टेटस दिया है। क्यों? क्योंकि भैया फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़ा, विदर्भ, ये अलग अलग रीजन है, ठीक है। दे आर नॉट मेजरली बेसिकली पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम महाराष्ट्र, ठीक है। अब उनको इनकॉर्पोरेट करना है तो कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। गुजरात में भी सौराष्ट्र और कच्छ ऐसी जगह है, ठीक है। तो वो सपोर्ट करने के लिए ये 371 में उनको स्पेशल स्टेटस का नाम दिया गया। वाइल सिक्किम इज एडेड अकॉर्डिंग टू 371F, ठीक है। सो देयर बाई इट अलाउड फॉर लॉज दैट वर इन प्लेस बिफोर सिक्किम्स एक्सेशन। सिक्किम हमें जब 1970s में जब जुड़ा, ठीक है, उसके पहले सिक्किम में जो लॉ चल रहे थे वो लॉ चलेंगे, ऐसा हमने 371F में बोल दिया। सिमिलरली वी मेंशन इन 371 दैट महाराष्ट्र एंड गुजरात विल हैव अ स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी। 371 इज अ स्पेशल पावर गिवन इन द हैंड्स ऑफ नागालैंड कि उनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस में हम कोई तरीके से पार्लियामेंट कोई तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। 371G प्रोवाइड्स दोस काइंड ऑफ सपोर्ट टू मिजो पीपल, ठीक है। तो ये 370 जिस तरीके से स्क्रैप किया गया उस तरीके की वजह से 371 के ऊपर प्रेशर आने लगा, ठीक है ना। चलिए ग्रेट। सो दिस इज हाउ द जम्मू कश्मीर सिनेरियो इज शेपिंग अप, ठीक है। 370 is scrapped through presidential order. Then Jammu and Kashmir Reorganization Bill has been passed and thereby they were divided into two parts, Jammu and Kashmir Union Territory and Ladakh Union Territory, ठीक है। और ये रहा आपके सामने 371 and 239A, that is 239 which is Union Territory वाला ruling and 35A has to be scrapped. I hope दिस एंटायर आइडिया इज देयर इन योर माइंड। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये पूरा सिनेरियो डेवलप हुआ। ओके, चलिए ग्रेट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, बट इफ यू लाइक दिस मॉड्यूल प्लीज पुट अ लाइक बटन, लाइक को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और protalentdigital.com को ज्वाइन करना भूलिएगा मत। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।